Jai Hind students, welcome to the online biology classes. This is for class 11th. In class 11th I am dealing with chapter 1 and today I am giving you the last part of this chapter, that is part 4, and it will deal with the taxonomical aids. Here the name as it says, taxonomical aids. Taxonomy, I have repeated this term many times during the previous slides. Taxonomy relates with the nomenclature, classification, identification of the living organisms. So here aids means help, assistant. What type of help or assistant we get in taxonomy or while doing the process of taxonomy, that is classifying the animal or the living organism, identifying the living organism and giving name to the living organism, which type of help we are getting and from where we will get the help. These all are included in the taxonomical aids. Aids means help. Okay. Now the topic starts with some introduction, that taxonomic studies of various species of plants and animals and other organisms are useful in various fields like agriculture, forestry, industry, etc. Yes, when we face or when we come together with a new species or a new living organism, how we will get that which type of organism it is, or even we are knowing that living organism previously, then also we must know the everything about that living organism, its characters, its nomenclature, its features, etc. And these studies are very useful for the agricultural, forestry and industry. Of course, our many industries are related or depend upon the product of living organisms, and also like our animal husbandry, all these industries and agriculture activities depend upon the living organism. So we must know that which type of living organism it is and what type of character it will have, so that it will give the best product. Okay. It is also important for knowing our bioresources and their diversity, and also we must know the living organism so that we can be aware of our biodiversity, that how much enlarged our biodiversity is. Okay. For this purpose we need extensive taxonomical studies. इस पर्पस के लिए हम लोगों को taxonomical studies, extensive taxonomical studies की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि we know that in the first slide I have said that we have large biodiversity in our biosphere. So we need identification and classification of that living organism, so that we can use that living organism and we can know better about that living organism. Okay. Identification of organisms requires intensive laboratory and field studies for the collection of actual specimen of plants and animal species. Of course, when you will do the plant and animal species like when you will need some plant and animal species specimen, then of course you have to go to the field and you need the collection of that specimen, that plant specimen. जैसे मुझे अभी आपको कुछ दिखाना पड़े, किसी पेड़ के फ्लावर को, किसी पत्ते को, तो ऑफ कोर्स मुझे फील्ड में जाकर उसको लाना होगा और देन आइडेंटिफाई कराना होगा और उसके बारे में बताना है. तो ऑफ कोर्स टैक्सोनॉमी एंड टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ इन रिक्वायर्स अ लार्ज फील्ड वर्क and laboratory work also to collect the large amount of specimen, so that we can be aware of our biodiversity present in our environment. Okay. It is very essential for training in systematics. Systematic is branch of further higher biology, जिसमें हायर बायोलॉजी आप लेंगे तो उसमें सिस्टमेटिक्स एक ब्रांच लेकर भी आप आगे पढ़ सकते हैं. उसमें ये सभी एड्स एंड टर्म्स बहुत अच्छे से यूज़ होते हैं.
Now the information gathered during identification process is used for classification of an organism and is also stored along with the specimen. जैसे अभी हमको कोई नया लिविंग ऑर्गेनिज्म मिला, then by applying various tools I will identify that living organism, classify that living organism and give nomenclature to that living organism. Okay, उसके बाद इन सभी डेटा को स्टोर करके और उस स्पेसिमेन को भी स्टोर करके उसको एक जगह एज अ रिकॉर्ड वी कीप इट, so that in future if we face with the same living organism, this specimen and this data can be used. And what is this? This is the taxonomical aids. यही है हमारा taxonomical aids जो कि various types के हो सकते हैं. Biologists have established certain procedures and techniques to store and preserve the information as well as the specimens. These are called as taxonomical aids. This is the definition of your taxonomical aids, that we can apply several methods for preparation of taxonomical aids. Okay, in my laboratory also, in biology laboratory also, you can see certain specimen stored in a jar. That is also a taxonomical aids, क्योंकि जब मैं उस चैप्टर को पढ़ाऊँगी तो उस स्पेसिमेन को आपके सामने रख दूँगी एंड देन बोलूँगी कि सी दिस इज़ टीनिया सोलियम, सी दिस इज़ ओपेनसिया, and we have several collections of plants in our garden also, so that we can use that plants as a specimen to make you understand the taxonomy and to identify the different organisms which is related to that organism or maybe different. So स्पेसिमेन को स्टोर करना, प्रिजर्व करना, उनके बारे में सारी जानकारी को रखते हुए इसी को और हम लोग कहते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स, जो कि हमें फर्दर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई या क्लासीफाई या डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है. ओके, नाउ द फर्स्ट टाइप ऑफ टैक्सोनॉमिकल एड्स इज़ योर हर्बेरियम, which is very simple and very used to. You also prepare herbarium. आपने क्लास 10th में बनाया होगा. 11th में it is your activity, involved in activity also, practicals also, that you have to prepare herbarium. हर्बेरियम कुछ नहीं है, एक आपका बुक रहेगा, उस बुक में पेजेस रहेंगे, उस पेजेस में आपको प्लांट्स को, अभी मैं लैब में रहती तो आई हैव दैट मेनी हर्बेरियम्स ऑफ योर सीनियर्स के वहाँ रखा हुआ है, और उसमें आपके जो प्लांट्स हैं उनको ड्राई करके उनका फैमिली, उनका नेम, नोमेनक्लेचर, नाम, बॉटनिकल नेम, फैमिली कहाँ से कलेक्ट हुआ एंड कलेक्टर का नाम, जो उनको उसको कलेक्ट किया उसका नाम लिखकर और उसको प्रिजर्व कर दिया जाता है. ओके, दिस इज़ द मोस्ट सिंपल फॉर्म ऑफ टैक्सोनॉमिकल एड्स जो कि हर्बेरियम है, और हमारे स्कूल लेवल पे भी ये बनता है. ये आपकी एक्टिविटी रहेगी क्लास 11th में भी, टू प्रिपेयर हर्बेरियम. What is herbarium then? Herbarium is a storehouse of collected plant specimens that are dried, pressed, preserved on seeds, and it is used for plants only. हर्बेरियम में जो है वो केवल प्लांट्स यूज होते हैं. ऐसा नहीं है कि एनिमल स्पीसीज़, किसी इंसेक्ट्स और कीड़े मकोड़े को हम लोग इसमें प्रिजर्व करेंगे. हम लोग केवल प्लांट स्पीसीज़ को ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं और उसको अच्छे से प्रिजर्व करते हैं. ड्राई क्यों करते हैं? यस, क्योंकि ड्राई इसलिए अगर नहीं करेंगे तो मे बी फंगस या उसको डिस्ट्रॉय होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, चांसेस ज़्यादा रहेंगे. उसमें फंगस ग्रो हो सकता है, वो ख़राब हो सकता है, स्मेल आ सकता है, और जो आपका स्पेसिमेन है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है. इसलिए पहले हम लोग उसको सन में ड्राई करते हैं, फिर प्रेस करते हैं किसी बुक या कॉपी के अंदर रखकर, और फिर हम इसको सीट पे, जो सीट आता है उस सीट पे लगा देते हैं. The seeds of the herbarium are arranged according to universally accepted system of classification. Herbarium seeds also carry a label providing the information about date, place of collection, English name, local name, botanical name, फैमिली, कलेक्टर्स नेम, एक्सेट्रा. जैसे कि हमने मालवेसी फैमिली का फ्लावर स्टोर किया, अब प्रिजर्व करना है, मुझे हर्बेरियम प्रिपेयर करना है. Then I will pick the flower malvaceae with a small twig, leaf and dry it first. Okay. Then after drying it,
press it in a copy in between the copy pages, and then we will paste it on a page. After that we will write the name, local name, and local name is like you say it Urhul, then English name what China rose, and then botanical name it's China rosa sinensis, then its collector's name, who have collected, like I have collected, then Priyanka Parashar, and then we will prepare a sheet and put it in a file. It becomes a storehouse or repository for future wit. It serves as a quick referral system in taxonomical studies. Many teachers, I have also created some herbarium so that I can make you see the quickest form or quickest, I can use it as a simple aids while teaching you. Like मैंने पैरेलल वेनेशन का एक हर्बेरियम लगा के रखा मोनोकॉट लीफ का, तो जब मैं आपको पैरेलल वेनेशन या मोनोकॉट लीफ पढ़ा रही हूँ तो उस वक्त आराम से उस स्पेसिमेन को लेकर दिखा सकते हैं. दिस इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिकल एड्स. ओके, this how we have pressed it, mention here how, see we have pressed this diagram, this on a simple sheet of paper, and here in the last the name of the plant, botanical name, local name, English name, family, and the person who has collected this, and the place also is written on the sheet, and then it is preserved in a file. Okay, now come to the second one, that is botanical garden. Botanical garden, very simple, you have in our school, in I think in every school it there is a botanical garden जहाँ पे collections of common trees होते हैं, जहाँ बच्चे जो कि नॉर्मल जो आपके एकेडमिक्स में टिल 12th में जितने भी प्लांट्स का यूज होता है उनका नाम और वो सभी चीज़ों का छोटा सा गार्डन रहता है किसी भी स्कूल या यूनिवर्सिटी में. हमारे स्कूल में भी है. आपका फ्रंट ऑफिस के सामने जो दो गार्डन है, मिड गार्डन, इनसाइड द स्कूल इज़ अ बॉटनिकल गार्डन, आउटसाइड द स्कूल ऑल्सो देयर इज़ बॉटनिकल गार्डन, जिसमें आपको सेवरल स्पीसीज़ ऑफ प्लांटेड प्लांट जो हैं वो रहेंगे, जो आपके जैसे मालवेसी, हम लोग अक्सर मालवेसी फ्लावर को, क्योंकि फ्लावर बहुत डोमिनेंट है और पढ़ना रहता है फ्लावर स्ट्रक्चर को, तो मालवेसी रहेगा, ओपनसिया रहेगा, एलोवेरा है, मेडिकल प्लांट्स हैं लाइक मोनोकॉट्स, कैना है, बहुत सारे सिंपल फ्लावर्स हैं, विनका रोजिया है, सदाबहार है, तो छोटे छोटे क्राइजेंडियम है, इन सभी को मिला के छोटा सा किसी भी स्कूल या यूनिवर्सिटी में गार्डन रहता है, दैट इज़ कॉल्ड एज बॉटनिकल गार्डन. उसी को हम लोग कहते हैं बॉटनिकल गार्डन. These are specialized garden having collections of living plants, and for reference remember here that in herbarium we have dead specimen. हम लोगों ने उसको ड्राई किया था, प्रिजर्व किया था, ड्राई किया था, प्रेस किया था, देन प्रिजर्व किया था. इन बॉटनिकल गार्डन इट इज़ लिविंग गार्डन अरेंजमेंट, लाइक आपके घर में गार्डन है वैसे ही आपके स्कूल में गार्डन है, दैट इज़ कॉल्ड बॉटनिकल गार्डन. दैट कंसिस्ट ऑफ सेवरल वेराइटीज़ ऑफ फ्लावर्स एंड प्लांट्स एंड several species like gymnosperm, angiosperm, monocots, dicots, etc. Okay, the plants species this garden are grown for identification purpose, and each plant is labeled indicating its botanical specific name and its family. और आपके उस बॉटनिकल गार्डन में जितने भी प्लांट्स रहेंगे उस पर एक छोटा सा बोर्ड लगा रहेगा कि वो किस चीज़ का प्लांट है कि, और वो उसका बॉटनिकल नेम रहेगा, फैमिली रहेगा, और उस बोर्ड को उस प्लांट पे लगाया रहेगा ताकि बच्चे आराम से उसको पहचान पाए ड्यूरिंग देयर स्टडी. तो आप स्टडी कर रहे हैं डिफरेंट प्लांट्स का, लाइक नीम के पत्ते का कंपाउंड लीव्स आप स्टडी कर रहे हैं, और उस समय आप बॉटनिकल गार्डन जाके एंड यू सी द नीम ट्री एजाडेरिक्टस, देन this will work as a taxonomical aids and it will called as botanical garden. Famous botanical, it is important for exam also. Famous botanical gardens, remember it: Kew, England, Indian Botanical Garden, Havra, National Botanical Research Institute, Lucknow. Okay, remember this garden. This is a beautiful garden. I have also many clips of school garden also, and make videos of school garden also, and it is my in my channel also. You can see that beautiful glimpse of our botanical garden. Okay, now
The third one is biological museum. Here it is museum. It deals with collections of several animals and plant species. Herbarium was related to plant species. Botanical garden related to plant species. Biological museum, here biology includes both the animal and plant, so it will include both the preservation of plant and animal species. Specimen are generally set up in educational institutes such as school and colleges. जैसे आप लोग I have visited many veterinary colleges. In that veterinary college it has its own lab and museum like space also, in which it has preserved the several organs of the cattle like cow, buffalo, and their teeth structure, mouth, skeleton, intestine, head portion, skull, their kidneys, and these types of organs specimen are preserved there using perfect preservative materials. Okay, and plant specimen can also be preserved if like whole cycas seed you have to preserve, then it may destroy after some time, so it is preserved like in हमारे जूलॉजी का हमारे लैब में, इन बायोलॉजी लैब में भी छोटे छोटे ग्लास जार में जो प्रिजर्व्ड हैं, पहले लाइव स्पेसिमेन प्रिजर्व रहते थे, अब उनका डमी प्रिजर्व किया जाता है टू सेव आवर इन्वायरमेंट, और दैट विल एक्ट एज बायोलॉजिकल म्यूजियम. Okay, museums often have collections of skeletons of animals, and it has preserved insects also like butterflies, butterfly life cycle, their cocoons, and spider, cockroach. These all specimen will be preserved in your biological museum. A small scene or a small mini form of this biological museum you can see in my biology lab also. Okay, now come to the next part, that is zoological park. सभी बच्चे जाते हैं घूमने zoological park में. That is your हर जगह zoological park है, हर state district level पे zoological park है. यहाँ पे several animals species और उनके भी आप जूलॉजिकल पार्क में जब विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि उनके हर जूलॉजिकल पार्क में हर एनिमल का नाम रहता है, कॉमन नेम रहता है, उनके बारे में थोड़ी हिस्ट्री लिखी रहती है, ये कहाँ से लाया गया है, इनका नेचुरल इन्वायरमेंट कैसा है, इनका फीडिंग हैबिट क्या है, फिर उनका जूलॉजिकल नेम भी लिखा रहता है. आप जूलॉजिकल पार्क जो यहाँ छत्तीसगढ़ कोरबा में है, यहाँ भी जाकर देखिए. दैट विल बी कॉल्ड एज that is collection of several living organisms and plants in a living form, not non-living form, in a living form. And in museum there is collection in a non-living form. आप इन सभी टेक्सोनॉमिकल एड्स का डिफरेंसेस जरूर याद रखेंगे. ओके, इन बायोलॉजिकल म्यूजियम मीन्स व्हाट, वहाँ पे लिविंग नहीं रहेगा, डेड स्टोर करके रखा जाता है. एंड इन दिस जूलॉजिकल पार्क आप हर चीज़ लिविंग पाएंगे. आप उनको मतलब अगर एनिमल है तो मूव करते हुए, उनका जो हैबिटेट है, अगर वाटर एक्वेटिक एनिमल है तो पानी में तैरते हुए, उनको खाना देते हुए, खाना खाते हुए, आप ये सभी चीज़ों को आराम से जूलॉजिकल पार्क में देख सकते हैं. So these are places where wild animals are kept in protected environment under human care, and which enable us to learn about their food habits and behavior, and we don't have to tease them while visiting the zoological parks, because they are very under intensive care and preserved also. They are like preserved so that we are able to see that and identify their characters. जैसे हम जब जेब्रा पढ़ेंगे तो जेब्रा को हम क्लासरूम में कैसे तुमको ला के दिखाएंगे कि ये जेब्रा है, लिविंग जेब्रा, सी दिस, तो क्या कहेंगे, आई विल प्रीफर यू टू गो एंड विजिट द जूलॉजिकल पार्क, वहाँ आप जेब्रा को घूमते हुए देख लीजिएगा. तो दिस इज़ हाउ this taxonomical aids are being used in our day-to-day study and in the taxonomy while identifying the living organisms also. Okay, now in animals, all animals in zoos are provided as far as possible and the conditions similar to their natural habitat. और of course जो जैसे जिस कंडीशन का जो एनिमल रहता है, जिस नेचुरल इन्वायरमेंट का, वैसे नेचुरल इन्वायरमेंट में ही उस लिविंग ऑर्गेनिज्म या उस एनिमल को रखा जाता है ताकि वो आराम से वहाँ ब्रीड कर सके,
ब्रीडिंग हो, वो रिप्रोडक्शन कर सकें, रह सकें, उनका हेल्थ अच्छा हो और उनकी संख्या को हम लोग बढ़ा भी सकें। ये भी हमारा एक एम रहता है इन जूलॉजिकल पार्क्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज़, this is something that we don't see usually, the key. Okay, this key is prepared by the person who is proceeding the systematics. जो person systematics वगैरह पढ़ते हैं हायर स्टडीज़ में, वो ये की प्रिपेयर किया जाता है and it is used as taxonomical aids. इस की को समझना ज़रूरी है। इट इज़ अनदर टेक्सोनॉमिकल एड्स एंड इट इज़ यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़। कीज़ को जो है वो प्रिपेयर किया जाता है हाथों से, मीन्स हम लोग एक ये एड्स खुद तैयार करते हैं। द कीज़, जैसे किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज़म को हमें पहचानना है तो हम इसका कंपेयर करेंगे एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म से। ओके, और दोनों के कैरेक्टर्स को कपल में लेके चलेंगे, इसमें है उसमें नहीं है, इसमें है उसमें नहीं, ऐसे कंट्रास्टिंग फीचर को लेकर चलेंगे और फिर एक कंक्लूज़न पे हम लोग पहुंचते हैं। तो कीज़ जो है वो प्रिपेयर कर किए जाते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स। Here you have to understand this. The keys are based on contrasting characters generally in pair and are called as couplet. इन जो इस पेयर को हम लोग कीज़ को प्रिपेयर करने में लेते हैं उस कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को कपलेट कहते हैं। कपल, पेयर, इस उस जैसे पेयर, जैसे हम फ्लावर पोजीशन लिए तो फ्लावर पोजीशन, किसी एक फ्लावर को पहचानना है तो उस पेड़ में फ्लावर का पोजीशन एक्सियल है कि टर्मिनल है, तो पहले हम दोनों लिखेंगे, फ्लावर पोजीशन एक्सियल, टर्मिनल। देन इफ़ द फ्लावर पोजीशन इज एक्सियल देन हम एक्सियल में टिक लगा देंगे। ओके, फिर अब एक्सियल में जाने के बाद उसके डीप का कैरेक्टर देखेंगे कि फ्लावर 4 पेटल्स का है या 5 पेटल्स का है, तो फिर ये 2 चॉइस होगा। तो ये कंट्रास्टिंग फीचर्स जो होते हैं जो हम लोग पेयर में लेते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज कपलेट। ओके, now like we can take example like that, here all gram positive skin bacteria, इसको हमें देखना है। then two characters we take, ये बैसिलस है या कोकस है। ओके, तो फिर बैसिलस या कोकस, फिर इसके 2 कैरेक्टर्स हो गए, इंडोस्पर्म्स या नो इंडोस्पोर्स, इंडोस्पोर्स हैं या इसमें इंडोस्पोर्स नहीं है। कोकस में देखेंगे ये कैटलिज प्लस है या कैटलिज माइनस है, मीन्स जब जब कैरेक्टर को हम लेंगे तो कैरेक्टर्स हमेशा पेयर्स में रहेंगे। एंड दिस पेयरिंग ऑफ कैरेक्टर, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, जैसे ये बैसिलस ये कोकस, यहाँ पे ये बैसिलस ये कोकस, ये कंट्रास्टिंग है ना, ये बैसिलस और ये कोकस। फिर यहाँ देखो इंडोस्पोर्स, नो इंडोस्पोर्स, फिर दोनों पेयर्स कंट्रास्टिंग है। दीज पेयर्स आर नोन एज कपलेट। ओके, यहाँ पे ये दोनों कपलेट है, यहाँ पे ये दोनों कपलेट है, ये दोनों कपलेट है। हर वक्त हम लोग कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेते हैं और उस तरह सेलेक्ट करते जाते हैं, एक को फिल्टर करते जाएंगे कि ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये है, एंड इन दिस वे वी विल सेलेक्ट द वन कैरेक्टर एंड फाइनली रीच द कंक्लूजन। इसके स्टेप्स क्या हैं कीज़ प्रिपेयर करने का? इसके स्टेप्स हैं, इन ईच स्टेप्स चॉइसेस आर मेड बिटवीन द 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। ओके, हर स्टेप्स में जो 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है उसमें हम लोग चॉइस करेंगे कि ये कैसा है, और एक कैरेक्टर को रिजेक्ट करेंगे और एक कैरेक्टर को एक्सेप्ट करेंगे। जैसे कि कोई बैक्टीरिया मेरे सामने है तो वो बैसिलस है कि कोकस है, तो बैसिलस है, तो कोकस को हम लोग रिजेक्ट किए और बैसिलस को ले लिए। तो दिस इज 1 कैरेक्टर रिजेक्टेड एंड 1 कैरेक्टर इज एक्सेप्टेड इन एवरी स्टेप। नाउ व्हाट वी डू, ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड। और जैसे जैसे हम लोग कैरेक्टर्स को 2 कैरेक्टर्स को लिए, एक को एक्सेप्ट किए एक को रिजेक्ट किए, तो हम एक स्टेप आगे बढ़े कि वो ये कैरेक्टर नहीं है, ये कैरेक्टर है, इसको लेकर अब आगे पढ़ेंगे। तो हर एक स्टेप जो हमारा की प्रिपरेशन में होता है उसको कहते हैं लीड। ओके, सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज़ आर रिक्वायर्ड फॉर, अगर जो हमें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फैमिली पता करना है तो उसके लिए अलग टेक्सोनॉमिक की बनेगा, अगर उसका स्पीसीज़ पता करना है तो अलग बनेगा, जीनस पता करना है तो अलग बनेगा।
एक की प्रिपरेशन से एक ही टैक्सन का हम लोग पता करते हैं। एक ही हमारा एम रहता है कि इस स्पीसीज़ का हमें फैमिली तक पहुंचना है, या हमें जीनस को आइडेंटिफाई करना है, या स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई करना है। सारे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज़ के जो तुम्हारे कीज़ होते हैं वो अलग अलग बनेंगे। ये नहीं कि एक ही की बना उसमें हम लोग फैमिली भी पहचान लेंगे, जीनस भी पहचान लेंगे, स्पीसीज़ भी पहचान लेंगे, ऐसा नहीं होगा। हर चीज़ के लिए, हर टैक्सन के लिए हमें जो टैक्सोनॉमिक कीज़ हैं वो अलग अलग से रखने होंगे, बनाने होंगे। तो आपको की में दो बात याद रखना होगा। द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज़ नोन एज कपलेट, और हर स्टेप जिसमें हम लोग एक रिजेक्ट करते हैं और एक बार एक्सेप्ट करते हैं, डैट विल बी कॉल्ड एज योर लीड। दो टर्म है आपके कीज़ में, वो याद रखिएगा। कीज़ आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। एनालिसिस मीन्स थोड़ा दिमाग लगाना, एनालिसिस करना, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। मतलब यहाँ पे जो टैक्सोनॉमिकल एड बना रहा है या कर रहा है, यूज कर रहा है, उसको भी थोड़ा दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा कि अच्छा ये की बना हुआ है फैमिली आइडेंटिफाई करने के लिए, तो हम लोग एटलीस्ट मिलाएंगे तो ना कि ये कैरेक्टर है इसमें, है इसमें नहीं है, इसमें है। तो इसमें ये थोड़ा एक्टिव प्रोसीजर है टैक्सोनॉमिकल एड्स में, एंड एनालिटिकल इन नेचर है, मीन्स थोड़ा थिंकिंग है इसमें। what we have to accept, what we have to reject to reach the correct classification. So in the next step we will read in your NCERT book there are various short terms are given as taxonomical aids. वो आपको उतना ही पढ़ना है, लेकिन एक क्लियरली डिफ्रेंशिएशन आपको प्रिपेयर कर लेना है उन तीनों शॉर्ट टैक्सोनॉमिकल एड्स के। ओके ये आपको लास्ट पेज में छोटे से पैरा में दे दिया है, 3-4 फ्लोरा, मोनोग्राफ, कैटलॉग, मैनलॉग। तो ये जो छोटे छोटे टर्म्स हैं वो छोटा ही पढ़ना है, बट डिफ्रेंशिएशन याद रखिएगा सारे में क्या है। The first taxonomical aids in the last page of your NCERT book is flora. It contains the actual amount of what is this flora, what flora क्या है। It contains the actual account of habitat and distribution of plants of a given area. जैसे आप यहाँ छत्तीसगढ़ में आए, यहाँ कोरबा कुसमुंडा में, तो फ्लोरा का मतलब हुआ कि यहाँ के इस पर्टिकुलर हैबिटेट का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स का पूरा एक दिया रहेगा कि इसमें कितने, यहाँ कितने प्लांट्स हैं, कितने स्पेसीज़ हैं, कितने वेराइटीज़ हैं, क्या सारा उसमें लिखा रहेगा। दिस प्रोवाइड्स एन इंडेक्स टू द प्लांट्स स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। आप किसी पर्टिकुलर एरिया में गए और यहाँ का जो डिपार्टमेंट है जो कि नेचुरल रिसोर्स से डील करता है, उसके पास यहाँ उसका अपना फ्लोरा होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा है या नहीं है। ठीक है, अब अचानक हमें कुछ ऐसा स्पीसीज़ मिल गया जो कि इस फ्लोरा से टैली नहीं कर रहा है, देन वी विल यूज़ द सेवरल डिफरेंट टैक्सोनॉमिकल एड्स। और अगर बाई चांस ऐसा ही स्पीसीज़ मिल गया कि वो बिल्कुल नया है, देन अ न्यू स्पीसीज़ विल बी क्रिएटेड एंड वी विल डिस्कवर द न्यू स्पीसीज़। लेकिन ऐसा है नहीं, इतना ईजी न्यू स्पीसीज़ की डिस्कवरी नहीं है। Now the next is your taxonomical aids is manuals. They are used in providing information for the identification of names of species found in an area. मैनुअल मिलता है आपको हर चीज़ का, जो भी आप कुछ नया काम करने जाते हैं तो मैनुअल दिया जाता है जहाँ पे उसके बारे में हर चीज़ लिखा रहता है। तो इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। उस वहाँ पे जितने भी स्पीसीज पाए जाएंगे उसका नेम इस मैनुअल बुक में, ये एक बुकलेट टाइप का रहता है, इसमें सारे आपके नेम्स लिखे रहेंगे। ओके, एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज मोनोग्राफ, दैट इट हैज़ इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सन। मोनोग्राफ जो है वो किसी एक टैक्सन का, जैसे जीनस का मोनोग्राफ, स्पीसीज़ का मोनोग्राफ, ये भी एक बुक टाइप है जिसमें एक टैक्सन का पूरा इन्फॉर्मेशन रहता है। तो अलग अलग मोनोग्राफ रहेगा अलग अलग टैक्सन के लिए। एंड योर लास्ट वन इज दिस, इट इज़ नॉट कमिंग, व्हाई, कैटलॉग। योर लास्ट वन इज कैटलॉग. I have mentioned it also why it is not coming. In the last one field is catalog, and this catalog
इंक्लूड्स, जैसे आप किसी होटल में जाते हैं या कहीं भी गए तो कैटलॉग दिया जाता है, तो वो आपके उस पर्टिकुलर एरिया का स्पीसीज़ जो है या जो भी स्पीसीज़ पाए जाएंगे वो एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज्ड रहेगा उस कैटलॉग में। यहाँ आपके अभी स्लाइड में नहीं दिख रहा है, आई हैव रिटन इट इन स्लाइड। When I will give you the PPT, it is written in that slide that the last one is catalog. जैसे कैटलॉग क्या है, जैसे आप गए और वहाँ पे कैटलॉग मिला तो रहता ना ब्रेकफास्ट में ये है, ये एक कैटलॉग रहता है। तो कैटलॉग इन टैक्सोनॉमिकल एड्स ऑल्सो इट विल इंक्लूड द नेम ऑफ ऑल स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर अरेंजमेंट इन अ पर्टिकुलर अरे, लाइक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सारे अरेंज्ड रहेंगे, एम से जितने स्पीसीज है एक साथ, ए से जितने हैं एक साथ, बी से जितने हैं एक साथ, तो दिस इज़ कॉल्ड एज कैटलॉग। All these short taxonomical aids are very important for NEET exam and this class 11th also. इसमें छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं और ये आपको क्लियर याद रखना है कि फ्लोरा क्या है, मैनुअल क्या है, मोनोग्राफ क्या है, कैटलॉग क्या है, और फिर उसको अच्छे से डिफ्रेंशिएटिंग और टेबुलेशन फॉर्म में बनाना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम ऑल्सो। छोटे हैं लेकिन एग्ज़ाम में आते हैं। नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट योर टैक्सोनॉमिकल एड्स। ये आपने हमें यहाँ टैक्सोनॉमिकल एड्स ख़त्म किया, मीन्स ऑल द असिस्टेंट और फ्रॉम वेयर वी विल गेट द हेल्प फॉर टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़, दैट वेल बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्ट्स, बायोलॉजिकल म्यूजियम्स, हर्बेरियम, your keys, preparation of key, then flora, then manual, then monograph, then catalog. These all are taxonomical aids. Now we have finished this chapter. हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है। 4 पार्ट्स में हमारा ये चैप्टर फिनिश हुआ। फर्स्ट है लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकंड था आपका नोमेनक्लेचर, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर एंड टैक्सोनॉमी, थर्ड था आपका बायोडाइवर्सिटी वगैरह ये सब, और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज दैट वाज डीलिंग विथ स्पीसीज, जीनस, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, किंगडम, दैट वाज टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज. The third slide was, and this is the fourth slide that deals with the taxonomical aids. This is the last topic of your chapter. Read the book again and again, see all the videos and slides given by me, and prepare the question and answer, and also prepare the question of NCERT exemplar. They are very relevant and analytical types, so see that questions and answers also. These are the answers that we can do. What are taxonomical aids? The help that we get from that we get to identify, to classify, to nomenclate the living organism are called as taxonomical aids. How herbarium is prepared? It is dried, preserved, and this is given in this slide. You can write there. What do you mean by a lead in a key? Every step is called a lead in a key. It is given. डिफाइंड एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, ये आपका छोटे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोरा एंड मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग. दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट दैट रीड द चैप्टर अगेन ऑफ NCERT book. Okay, thank you, and I think your admission will be done soon. So the next chapter we will start after giving a long break. So read this, as you have not get admitted in class 11, but I am teaching as your keen interest in biology. So read this first chapter and have a nice break. Stay home, stay safe, and when the admission will be performed, get your admission. Thank you.